Ma'am, you can start. Okay. A very good evening to one and all here in the class. Today we are going to start with the basic nursing foundation, and hopefully all of us here we have the idea. Only we'll do the basic thing and we'll go one by one. Okay. So first of all, let us know who is the lady with the lamp. She is none other than the Florence Nightingale, and she was born in Italy on 12th May 1820, and she was died on 13th August 1910. And we also call her the founder of modern nursing. And the International Nurses Day, it is celebrated on 12th May on the remembrance of her birthday. And according to her, the nursing, it is on fourfold. And as a nurse, we have to work in four areas. First of all, to provide the nursing care with the patient, with the environment, and also with the health. It can be the individual health, it can be the family health, it can be the community health. Okay. So now, whenever we are talking about the health, हम लोगों को पहले जानना चाहिए हेल्थ का मतलब क्या है. अगर लेमन है जिनको कुछ भी पता नहीं है, उनका हिसाब से हेल्थ क्या है, ए साउंड माइंड है. साउंड माइंड, उसके साथ साउंड बॉडी, जहाँ पे एक साउंड फैमिली रहता है, एंड ऑल्सो इन ए साउंड एनवायरमेंट. सो चार चीज, अगर हम लोगों का हेल्थ को हेल्दी रखना है, हम लोग खुद को हेल्दी रखना है, तो चार चीज हम लोग को ध्यान रहना है. पहला है ए साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड फैमिली, एंड एज वेल एज साउंड एनवायरमेंट. ये चार चीज. एंड ऑल्सो वी कैन कॉल दैट हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. जहाँ पे हेल्थ ऐसे एक चीज है, जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी बीमारी ना हो इसमें, उसमें बहुत पीसफुल हो. किसके साथ? अपने आप के साथ पीस. पीस विद सेल्फ, पीस विद कम्युनिटी, इवन पीस विद गॉड. सो सब चीज आते हैं, मतलब fully peace among ourselves. Then only we can consider ourselves as healthy. Now, according to the Florence Nightingale, who is the lady of lamp and as well as pioneer of modern nursing, उनका हिसाब से जो health है, it is being well and using the fullest extent of every power we have. हम लोग खुद के पास जो भी पावर है, वो पावर को यूटिलाइज करके फुल्ली हेल्दी रहना है, and free from disease, absence from disease, keeping ourselves. Then only we can consider. Now, coming to the nursing in India, the condition of nursing in India, or how the nursing has been developed in India. Because nursing का जो condition है, अभी जैसा चल रहा है, whatever we are seeing now, it was not like before. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. तो अगर कुछ important year हम लोग को याद रखना है, in the year of 1871, the first school of nursing, मतलब ये अपने freedom से पहले, during the British era, the first school of nursing was started in Madras. After that, 1908, the TNI, that is Trained Nurses Association of India, it was formed. Then in the year of 1926, Tamil Nadu, they have formed the first registration council. अभी जो हर एक स्टेट में जो registration council है, even Gujarat also we are having the Gujarat Nursing Council. तो पहला nursing council जो है, registration council जो है, वो था तमिलनाडु में in the year of 1926. In 1946, मतलब just before 1 year of the independence, the first BSc nursing program, it was started in Delhi and Vellore. एक ही साथ in the year of 1946 वहाँ पे start हुआ है. Then 1947, the INC Act was passed, that is Indian Nursing Council Act was passed. And 1948, the INC Act जो passed हुआ था, जो previous year 1947 में, that act came into existence. And in the year of 1960, first MSc nursing program has been started.
तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि नर्सिंग जो इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ईयर जहाँ पे ऑल द जो मतलब वी कैन से दैट नर्सिंग का टर्निंग पॉइंट इंडिया में एंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर जंप करते इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मतलब हम लोगों का जो हेल्थ है ना, ये किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, मतलब क्या क्या चीज अपना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला है दैट इज द जेनेटिक एनवायरमेंट। मतलब हम लोग अपना दादा परदादा से हम लोग को क्या मिला है, बहुत कॉमन है, सुनाई देता है आजकल, जिनका ग्रैंडफादर को डायबिटीज था, फादर को भी डायबिटीज हुआ है। यस, आई एम ऑल्सो इन रिस्क, दिस इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एनवायरमेंट। देन द मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा कॉमन है। कमिंग टू द एजुकेशन, yes, if we are educated, we know how to take care of our health, and if we are taking care of our health properly, automatically we will maintain ourselves healthy. Important है education. Then coming to the income and the social status, which social status we are maintaining, and as well as what is our income. Those whose income is high, उन लोग का लाइफस्टाइल अलग है, जीने का तरीका अलग है। ऑब्वियस उन लोग एजुकेटेड होते हैं, 10 लोगों के साथ मिलते हैं, 10 लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, उन लोग को पता चलता है कैसे अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। इसलिए इनकम एक चीज है। सेकेंड ये है अपना सोशल स्टेटस, हम लोग किसके साथ चलते हैं, किसके साथ देखते हैं। कमिंग टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स द एयर, देन वाटर, द हाउसिंग, द लाइटिंग, द साउंड, दिस ऑल आर द फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग रहते हैं। कमिंग टू द वर्किंग कंडीशन, हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज वर्किंग कंडीशन में बहुत कॉमन ऐसा होता है, ठीक है हम तो अच्छी जगह में काम कर रहे हैं, बट हाउ मच वी आर सेटिस्फाइड, आर वी सेटिस्फाइड? बिकॉज हम लोग अगर सेटिस्फाइड होते हैं, मेंटली पीस रहता है। अगर मेंटली हम लोग पीसफुल है, ऑटोमेटिकली फिजिकली वी विल बी हेल्दी, बिकॉज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दिस आर वाइस वर्सा, एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। मेंटली आप हेल्दी नहीं हो तो फिजिकली भी आप हेल्दी नहीं रहोगे। जिस दिन हम लोग को फीवर आता है, उस दिन हम लोग हंस हंस के किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो वर्किंग कंडीशन अगर आपका सही है, आपका जो को वर्कर्स है दे आर हेल्पफुल, उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो आपका जॉयस एंड सॉरोस, उन लोग आपको हेल्प करते हैं काम में, आपका व्हाट इज दैट योर पर्सनल प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, देन आपका सैलरी प्रॉपर मिल रहा है, आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। So all those include in your working condition. Coming to your social support network, आजकल सोशल सपोर्ट का हिसाब से हम लोग बहुत व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, बट हैव यू एवर थॉट जितना फेसबुक में हम लोग का फ्रेंड लिस्ट में जितना फ्रेंड्स है, आर दे आस्किंग अस इन द मॉर्निंग हाउ आर यू? नो, many of them are not asking even us. If we are sick also, many of them they even don't know that we are sick. बट आपका जो नेबर है, आप घर पे जिसके साथ रहते हो, आपका जो फ्रेंड्स है, दे ओनली विल सपोर्ट अस। इसलिए बोलते जो जेरिएट्रिक जो है, बहुत इनके लिए ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है। जो जेरिएट्रिक है, एजड है, चलो रिटायर हो गया, ऑफिस नहीं जाते, बट वो क्या करते हैं, अगर उनको सोसाइटी में अपना एक ग्रुप मिल गया जिनके साथ वो बैठते हैं, बात करते हैं, सुबह शाम मिलते हैं, अगर वो सिक है तो उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। इफ दे आर ऑल्सो, इफ एनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, दे कैन टेल नहीं मुझे भी ऐसा हो रहा है तो आप ये करो। इसको बोलते हैं सोशल सपोर्ट। सो हर एक एज के लिए सोशल सपोर्ट, इवन द नेटवर्क, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस मीन्स आपके हाथ के सामने हॉस्पिटल अवेलेबल है क्या, डॉक्टर्स अवेलेबल है क्या, फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है क्या। अगर हम लोग इंडिया का सिनेरियो देखें तो अर्बन जो है, अर्बन एंड रूरल, बिकॉज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरिया, जहाँ पे अर्बन में क्या है, बहुत सारा हॉस्पिटल से आप यहाँ से थोड़ा सा इवन
200 steps also if you are going, you can find it out a single clinic. आपको मिल जाएगा, पैथोलॉजी मिल जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएगा, डेंटिस्ट मिल जाएगा. बट अभी अगर आप रूरल एरिया का बात करो, वहां पे दूर दूर तक आपको इवन ए सब सेंटर ऑल्सो इज नॉट अवेलेबल. ऐसा भी एरिया है. तो हेल्थ कंडीशन क्या हो सकता है जिनके सामने डॉक्टर से बाहर निकलते हुए, घर से बाहर जाओ तो डॉक्टर मिल जाएगा आपको. थोड़ा सा बुखार होने से भी हम लोग जाते हैं, चलो दिखा के आते. बट अगर गांव का बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरिया, they don't have any option. If they're sick also, they don't have any other option. तो उन लोगों का जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस बढ़ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में, जब यहाँ अभी एकदम सही नहीं हो रहा है तो जाते हैं उन लोग डॉक्टर के पास. देन द लास्ट वन इज आवर कोपिंग स्किल. हम लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं विद द सिचुएशन. सी, लाइफ इज मल्टीफैक्टोरियल. लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम इन आवर लाइफ. जॉय, जैसा जॉय आते वैसे सॉरो भी आते. So as a human being, those who are mentally healthy, they should have the coping ability. जैसा हम लोग खुशी को जैसे हम लोग easily accept करते हैं, at the same time we should accept even the sorrow also. जितना easily हम लोग accept करेंगे, जितना coping ability, coping जितना easily हम लोग कर पाएंगे, उतना ही mentally we can be healthy, which in turn we can be physically healthy. Coming to the next slide. So here I have shown you some of the factors of our health. Here the first one, it is the individual factors which consider as our age, the gender and as well as the genetics. Okay, age ऐसा है जो दो extreme areas of our life, that is the newborn and as well as the old age, they are more prone for disease. उन लोग ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी. बच्चे का इम्यूनिटी मेच्योर नहीं होता है और जो एजेड है उन लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है. Coming to the gender, it tells that female are more potential to get the disease. Coming to the genetics, already I have explained. Then the individual behavior, how we are behaving, what is our behavior, it explains about the exercise. दिन में हम लोग कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं. Naturally says that 20 to 40 minutes of brisk walk also, it is very very important, and it helps us to maintain our weight, to prevent the various disease, to protect ourselves from the disease. Then the diet, what type of diet pattern we are following. Addiction, coming to the smoking, drinking and all those. Then the coping ability. Coming to the public service and infrastructure, in that whether the park facility is there. पार्क इसलिए नहीं है खाली बैठने के लिए. इवन वी कैन डू जॉगिंग, रिक्रिएशन हो सकते हैं. एजुकेशन, देन द कम्युनिटी सेंटर. कम्युनिटी सेंटर, इट कैन बी द ओल्ड एज होम. ओके, इट कैन बी द मैरिज हॉल, it can be the temple even. Then the transportation, the economic condition and as well as the healthcare. The fourth one is living and working condition, where we are living and as well as where we are working. हम लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को फूड का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं, हाइजीनिक फूड मिल रहा है कि नहीं, जिस घर पे हम लोग रहते हैं, व्हाट इज द हाउसिंग कंडीशन, सोशल नेटवर्किंग, सेग्रीगेशन, then working environment, then wages and benefits, salary kitna milte or apart from the salary what are the other benefits we are getting. Then air, water and soil quality, that is our physical environment, and also it includes the noise. The last factor, that is social, economic and political factor, in that the racism hai ki nahi in our society, and sexism, then the political participation, the power, the inequality in between the human being and as well as the poverty. These all are the factors which is directly and indirectly, it is maintaining, helping and as well as destroying our health. Okay, coming to the next slide, we will jump into the immunity now. So first of all, let us know what is immunity. So immunity का मतलब ये है the resistance which is exhibited by the host.
होस्ट कौन है? जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री हुआ है, उनको बोलते हैं होस्ट. So immunity, it refers the resistance which is exhibited by the host towards the injury, and that injury it is caused by the microorganisms and also their products. Okay, now if we see the types of the immunity which is already there in the slide, it is mainly of two types. One is the adaptive immunity and one is the innate immunity. If we talk about the innate immunity, this is also known as the native immunity. उसको हम लोग native immunity भी बोलते हैं. So native immunity का मतलब है ऐसा type of resistance towards the infection जिसमें the individual or the human being, they possess it by the virtue of their genetic and as well as the constitutional makeup. ये inborn है. Through the genetic and as well as through the constitutional makeup, ये हम लोग automatically possess करके आते हैं. Okay, and ये चीज भी हम लोग को याद रखना है. In case of innate immunity, this is not at all affected by the prior contact with the microorganism or the immunization. प्रायर कोई भी कंटैक्ट हो या माइक्रोऑर्गेनिज्म या इम्यूनाइजेशन, इसके द्वारा ये इम्यूनिटी है ना, ये इफेक्टेड नहीं होता है. ओके, next is the adaptive immunity. So this adaptive immunity, again it is of two types. One is the natural immunity and one is the artificial immunity. This natural immunity, it is divided into passive and the active immunity, and the artificial immunity, it is divided into passive and as well as the active immunity. Now let us see the acquired immunity with the picture, like we can get it a clear idea about that. So the acquired immunity, it is the type of immunity which develops during your lifetime. अपना lifetime में है ना, जैसा हम लोग innate immunity देखा था वो सिर्फ inborn है, उसमें कुछ हम लोग का बाहर से कोई भी like it is not influenced by the microorganism, like previous contact of the microorganism and as well as the immunization. बट इन केस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या है, अपना जो लाइफ टाइम है, मेरा जो लाइफ स्पैन है ना, उस लाइफ स्पैन में मुझे डेवलप करना पड़ता है. तो कैसे हम लोग डेवलप करते हैं? सो डेवलप करने का दो तरीका होता है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है जब हम लोग डेवलप करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और द वैक्सीनेशन. अभी जो कोविड-19 का जो वैक्सीन दे रहा है, क्यों दे रहा है? अपना जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, उसको डेवलप करने के लिए दे रहा है. Okay, so this active immunity, it develops in response to an infection or the vaccination. So ये जो active immunity है, it is again divided into two. One is the natural and one is artificial. So natural क्या है? The antibodies which is developed in response to an infection. as example measles को बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं एक बार अगर किसी को measles हो गया ना, लाइफ लॉन्ग उनको होता नहीं. और measles, smallpox एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग किसी को नहीं होता है. इसको बोलते हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड द लाइक नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इन दैट द एंटीबॉडीज दे डेवलप इन रिस्पांस टू अ वैक्सीनेशन. सो वैक्सीन देने के बाद जो इम्यूनिटी अपना बॉडी में जो डेवलप जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. बट इफ यू टॉक अबाउट जंप इनटू द पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है which develops after you receive antibodies from somewhere or someone else. ठीक है, so पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब अपना बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है किसी से या कहीं से हम लोगों को मिलते हैं. उसमें जो नेचुरल है दैट इज थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क. सो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क से जो हम लोगों को एंटीबॉडी रिसीव होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. बट antibodies which is received from a medicine से जो एंटीबॉडी हम लोगों को मिलते हैं, as example from the gamma globulin injection और the infusion, देने के बाद जो बॉडी में आर्टिफिशियली जो हम लोगों को पैसिव जो इम्यूनिटी मिलते हैं ना आफ्टर रिसीविंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, it is known as the artificial passive immunity. Okay, so this is about the classification of acquired immunity. Acquired immunity, it is divided into active and passive immunity. So both the active and passive immunity, it is again divided into natural and artificial. Now let us jump into the types of vaccine. So types of vaccine में, see in the screen it is very clear.
live vaccines are there, live attenuated vaccine are there, then killed inactive vaccine are there, then toxic, then cellular fraction vaccines, and the recombinant vaccine. Abhi, if we see about the examples of the vaccine, which is very very important, live vaccine कौन सा है? एक है smallpox, okay, and varicella vaccine. There is a little spelling mistake, okay, varicella vaccine. Then if we jump about the live attenuated vaccine, so live attenuated vaccine or the live vaccine जिसको बोलते, that is BCG, then typhoid vaccine, then plague, oral polio vaccine, yellow fever, मीजल्स मम्स एंड रूबेला जो MMR वैक्सीन है 9 मंथ में जो देता है, ओके, इंट्रानेशनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड द टाइफस, ओके, दीस आर द लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन. If we see the examples of killed inactivated vaccine, okay, killed inactivated vaccines are typhoid, cholera, pertussis, plague, rabies, then salk polio vaccine, then intramuscular influenza vaccine, and the Japanese encephalitis. Coming to the toxins, that is diphtheria vaccine and the tetanus toxoid. Then the cellular fraction vaccines, they are the meningococcal vaccine, the pneumococcal vaccine, and the hepatitis B polypeptide vaccine. And in case of recombinant vaccine, it is none other than the hepatitis B vaccine. So these are the types of vaccine every day which we are coming across. Coming to the national immunization schedule, the new one, I'm doing it little bit zoom. Okay, let us start from the birth itself. Okay, so at birth, the BCG vaccine is given, and it is given, the maximum age is till 1 year of age, and for the infant it is 0.05 ml until 1 month. So till 1 month the dose is 0.05 ml, and beyond the age of 1 month that is 0.1 ml. If we talk about the diluent, yes, already manufacturers supply diluent, that is sodium chloride. Okay, it is given with the vial itself. It is given intradermal, and the site is upper arm left. Okay, left upper arm में BCG वैक्सीन देते हैं, और जो लाइफ लॉन्ग अपना हाथ में एक मार्क छोड़ के जाता है. ओके, the next is the hepatitis B, that is birth dose. जो बर्थ के टाइम में जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देते हैं ना, ये देना पड़ता है विदिन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर ये देना पड़ता है. द डोज इज 0.5 ml, और ये डाइल्यूट फॉर्म में आता है, इंट्रामस्कुलर होता है ये, और उसका जो साइट है ना, दैट इज एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई लेफ्ट, ये लेफ्ट में देते हैं. सो एट बर्थ जो दो वैक्सीन लगता है ना, दोनों ही वैक्सीन लेफ्ट साइड में लगता है. ओके, बीसीजी वैक्सीन लगता है हाथ में, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ये जो है ना, ये पाँव में लगता है, लेफ्ट थाई में लगता है. ओके, एंटीरियर लेटरल साइड. देन नेक्स्ट इज ओपीवी वैक्सीन, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये भी हम लोग एट बर्थ देते हैं, बट विद इन फर्स्ट 15 डेज के अंदर भी हम लोग दे सकते हैं, मैक्सिमम टाइम में. ये ओरल है, 2 ड्रॉप दिया जाता है. उसके बाद 6, 10 और 14 वीक. ओके, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, ये ओपीवी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज दिया जाता है. और मैक्सिमम जो एज है ना, ये टिल 5 इयर्स तक हम लोग दे सकते हैं, वो भी 2 ड्रॉप्स ही है, ओरल देते हैं. एंड अभी पेंटावेलेंट आ गया. ओके, पेंटा मींस 5. सो पेंटावेलेंट में क्या क्या आता है, ये 3 डोजेस दिया जाता है 6, 10 और 14 वीक में. ये इसमें आता है डिप्थेरिया, पार्टोसिस, टिटेनस, देन हेपेटाइटिस बी एंड हीव वैक्सीन आता है. ओके, एंड ये 1 साल तक हम लोग दे सकते हैं, मैक्सिमम एज है ना 1 साल तक दे सकते हैं. एंड फॉर द इन्फेंट डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना है. सो उसका भी जो साइड है ना, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट. याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी का जो डोज है ना, हेपेटाइटिस बी का डोज और पेंटावेलेंट का जो डोज है ना, वो सेम जगह में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, दैट इज लेफ्ट. उसके बाद आता है आईपीवी, दैट इज FIPV भी बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल आईपीवी डोज, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. ओपीवी है एक्टिवेटेड, एंड आईपीवी जो है, जो इंजेक्टेबल है, दैट इज इनएक्टिवेटेड. ये देते हैं 6 सप्ताह, 6 और 14 वीक में देता है, 6 वीक्स और 14 वीक्स में देता है.
और उसका जो मैक्सिमम एज है दैट इज 1 ईयर ऑफ एज तक दिया जाता है। उसका जो डोज है ना दैट इज 0.1 ml इंट्राडार्मल होता है ये। फ्रैक्शनल आईपीबी ऑलवेज दैट इज इंट्राडार्मल, और उसका जो साइट है ना दैट इज राइट अपर आर्म। ठीक है, अभी तक जितना भी वैक्सीन हम लोग देखा है वो सब लेफ्ट साइड में देखा है। दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन फ्रैक्शनल आईपीबी जो 14 वीक में दिया जाता है, 6 और 14 वीक में दिया जाता है, वो राइट आर्म में दिया जाता है। देन कमिंग टू द रोटावायरस, रोटावायरस ये जहां पे भी एप्लीकेबल है वहां पे दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, दैट इज 6, 10 और 14 वीक में दिया जाता है। ओके, टिल 1 ईयर ऑफ एज तक देना है। 5 फर्स्ट डोज 1 साल के अंदर देना ही पड़ता है रोटावायरस का, और ये 5 ड्रॉप देना पड़ता है, ये ओरल होता है। उसके बाद आता है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये भी वेरेबल एप्लीकेबल है, हर एरिया में नहीं देता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल का हिसाब से। ये 6-14 वीक में देना है, और कंप्लीटेड करना है उसको 9 मंथ में, तो कब देना ही है 6 वीक और 14 वीक। फर्स्ट डोज जो है ना 9 मंथ में कंप्लीट करना ही है, 9 मंथ में बूस्टर डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए ये न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का। मैक्सिमम 1 ईयर तक हम लोग दे सकते हैं। उसका 0.5 ml देना है, वो भी इंट्रामस्कुलर है, दैट इज एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, वो राइट है। लेफ्ट साइड में हम लोग देते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी, राइट में देते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। उसके बाद आता है मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज, ये 9 मंथ में देना है एंड 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 5 साल तक दे सकते हैं हम लोग। 0.5 ml है, और उसका जो डाइल्यूटेंट है ना ये वायल के साथ आता है बाय द मैन्युफैक्चर। ओके, सबक्यूटेनस देना है ये राइट अपर आर्म। Coming to the second last, that is Japanese encephalitis, that is also wherever applicable at 9 month, 9 to 12 month के अंदर ये दे देना है। 15 साल तक उसका मैक्सिमम टाइम है। 0.5 ml देना है, उसका भी डाइल्यूटेंट मैन्युफैक्चर सप्लाई करते हैं, ये भी सबक्यूटेनस देना है। ये है राइट अपर आर्म लेफ्ट साइड में देना है। मम्स मीजल्स रूबेला देना है राइट साइड में, जापानीज एनकेफेलाइटिस लेफ्ट साइड में देना है। एंड विटामिन ए, that is the first dose of vitamin A which includes the 1 lakh international unit 9 month में देना है, और 5 साल तक कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, हर 6 महीने में एक बार देना है। 1 ml देना है, that is of oral. So this is about the national immunization schedule, the new one. Next, let us see the code of ethics. So code of ethics. So code of ethics. Code of ethics, it serve as a means of self-regulation, खुद का regulation. ठीक है, एज ए नर्स कुछ रूल्स हम लोगों को भी फॉलो करना है। नर्स हो गया करके वट एवर वी वांट वी कैन नॉट डू, वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ इथिक्स। सो दिस कोड ऑफ इथिक्स इट सर्व एज ए मीन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड set the standards of individual behavior as a nurse. And this code of ethics, it is first established by International Council of Nurses in the year of 1953 and it is revised in 2012. So there are mainly 5 elements of code of nurses. So the 5 elements are nurses and people, nurses and practice, nurses and co-workers, nurses and society, and nurses and the profession. So these are the 5 elements of code of ethics. Coming to the fundamental responsibility of the nurse, जो nurse का हिसाब से as a nurse हम लोग का क्या क्या fundamental responsibility है, तो ये 4 एरिया है मेनली। एक है to promote the health, health को promote करना है, then the prevent the disease, then to restore the illness and to alleviate the suffering. ये 4 होता है अपना। Coming to the nursing is a profession. तो कैसे हम लोग नर्सिंग को बोलते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन कैसे हम लोग इसको कंसिडर करें। सो प्रोफेशन जो क्वालिटी पोजेस करता है ना
वो सब क्वालिटी अपना नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग में भी है। क्या क्या है? एक है साइंटिफिक नॉलेज, एक ही प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल, जो भी हम लोग कर रहे हैं ना कुछ भी काम, वी आर आंसरेबल फॉर दैट। देन एजुकेशन, बिना एजुकेशन का कोई भी नर्स नहीं बन सकते। वी आर हैविंग ए थियरी, कुछ पढ़ते हैं हम लोग का बुक है, एज वेल एज द थियरी वी आर अप्लाइंग इन द प्रैक्टिस। ऑटोनॉमी, हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं पेशेंट के बारे में। हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग का कोड ऑफ इथिक्स है, जो हम लोग को रास्ता दिखाते हैं कैसे जाना है, कैसे चलना है। एंड वी आर केयरिंग, वी आर प्रोवाइडिंग केयर टू आवर पेशेंट। इसलिए हम लोग नर्सिंग को बोलते हैं कि ये एक प्रोफेशन है, बिकॉज प्रोफेशन का जो भी क्वालिटी है ये नर्सिंग में भी अवेलेबल है। साइंटिफिक नॉलेज, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन, theory, autonomy, code of ethics, and as well as the caring. Now, coming to the legal and ethical aspects in nursing. So, in the legal and ethical aspects, यहाँ पे चार mainly है। एक है tort, can be intentional, can be unintentional, crime, then good Samaritan law, and the ethics. ये चार point है mainly. It is there in the legal and ethical aspect in the nursing. Let us see what are the intentional tort. Okay, intentional tort में क्या क्या आते हैं? Intention का मतलब तो पता है ना, खुद मर्जी, मर्जी से हम लोग जो करते हैं वो बोलते हैं intentional. So intentional tort क्या क्या है? First है assault. ठीक है, assault का मतलब है an act of unlawful threat or attempt to do bodily injury. हम लोग जब पेशेंट को थ्रेट करते हैं, आप अगर ये फॉलो नहीं किए तो ये कर देंगे, आपने अगर मेडिसिन नहीं खाया तो आपको हम इंजेक्शन दे देंगे, या करेंगे वो करेंगे। सो दैट इज द अनलॉफुल थ्रेट और अटेम्प्ट, सिर्फ थ्रेट ही नहीं, कुछ कर दिया है, which in turn lead into the bodily injury. Then battery, that is an act of unlawful or unintentionally touching without consent. इवन हम लोग पेशेंट को जब कोई भी केयर देने के लिए जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ठीक है अभी मैं आपको बैक केयर दे रही हूँ, अभी मैं आपका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। सो वी आर आस्किंग, वी आर टेलिंग देम, वी आर इन्फॉर्मिंग देम, बट बैटरी का मतलब है एन एक्ट ऑफ अनलॉफुल और इंटेंशनली टचिंग विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट के बिना हम लोग किसी को टच करना। देन डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट that result in damage to the reputation of a person, किसी को गलत बताना किसी के बारे में। then fraud है, purposefully आपने false बोला है या false कुछ किया है, that is the fraud. then invasion of privacy, that is unwanted intrusion into person's private affair, किसी का पर्सनल जो मैटर है उसमें unwanted intrusion, खुद का नाक घुसाना, which is not acceptable. then public disclosure, then act of revealing or something information about a person's private life, किसी का private life के बारे में किसी को inform कर देना। then false light, a false published information, ठीक है, किसी को किसी के बारे में गलत information publish करना। and appropriation, जहां पे किसी का image और किसी का नाम को without any authorization commercial use के लिए आपने use किया है, इसको बोलते हैं appropriation. so these are the intentional tort. Coming to the unintentional tort, वो क्या है? intentional tort किया जानबूझ के, unintentional tort किया है मतलब अनजान में हो गया, that is the negligence, an act or conduct that falls below the standard of care. ठीक है, किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को पता नहीं है कैसे ये केयर देना है, तो उनको जो पता था ना उन्होंने वो किया है, but that was not right, मतलब वो इंटेंशनली वो किया नहीं है, उनको जितना पता था उन्होंने उतना किया है, but it was not right, that is the negligence. and one is malpractice, that is professional negligence or carelessness committed by the professional person, जो professional है वो negligence किए, आपको पता है your patient is what is that restless, you know very well, but फिर भी आपने साइड रेल आप नहीं किया है, you did not, और patient गिर गया, ये क्या है? that is the negligence. and malpractice है आप गलत तरीके से, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस आपका केयरलेसनेस था, नहीं केयर नहीं था, which is committed by a professional person. ये दो चीज क्या है? this is unintentional, बिना अनजान में हो गया। now coming to the next one is crime. so crime is act of commitment
in violation of law where the consequences of conviction by a court is punishment. ठीक है, ऐसा कुछ गलती किया है जहाँ पे कोर्ट पनिशमेंट देंगे, इसको बोलते क्राइम। उसमें क्या आते हैं, फेलोनी। फेलोनी है ए क्राइम ऑफ सीरियस नेचर, बहुत सीरियस क्राइम है जिसमें पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो सकते हैं, इवन डेथ तक भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं फेलोनी। एंड वन इज मिसडेमेनर, ये है दिस इज द क्राइम ऑफ लेस सीरियस नेचर, इतना कुछ सीरियस नेचर का नहीं है, जिसमें पेनल्टी है ना, फाइन हो सकते और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है लेस देन 1 ईयर। ये दो। नेक्स्ट we'll see about the ethics. ठीक है, so in ethics we have 6 basic ethics. First one is autonomy. So autonomy का meaning है the right to make one's own decision. आप as a nurse आप जो कर रही हो ना, you are deciding कि नहीं मेरा patient को ये करना है, my patient need it, you have decided, that is the autonomy. Second is non-maleficence, that is duty not to do harm. As a nurse we should never do any harm for the client. Then beneficence, whenever you are doing good. Then justice, the fairness, that is irrespective of anything, irrespective of caste, creed, religion, their educational qualification, their economic condition, their society values, irrespective of everything you are doing, you are providing the same care to all the patient, that is the justice. Then fidelity, fidelity means faithfulness to agreement and responsibilities one has taken. Okay, whatever responsibility you has taken, you are doing it, you are maintaining, you are completing that responsibility. And veracity means telling the truth. So these are the ethics or ethical principles. Coming to the ethical dilemma in nursing. कभी कभी ये सब ethics को maintain करते करते हम लोग as a nurse ethical dilemma में आ जाते हैं कि क्या करना है, सच में क्या करना है, सच में क्या नहीं करना है, what I am supposed to do. तो ये ethical dilemma में क्या आता है, पहला वाला है euthanasia और mercy killing. Okay, so euthanasia ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है गुड डेथ। ओके, सो ये गुड डेथ भी है ना 3 टाइप का हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव यूथेनेशिया और द एक्टिव यूथेनेशिया, एक हो सकता है नेगेटिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, और हो सकता है कि वॉलंटरी यूथेनेशिया। इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव यूथेनेशिया, इसका मतलब ये है जब कोई डॉक्टर है ना, फिजिशियन, वो कोई लाइक ही सप्लाइज और ही एडमिनिस्टर्स एनी एजेंट और द ड्रग which leads to the death, मतलब डेथ तक पहुंचाने के लिए कोई भी डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो एक्टिव यूथेनेशिया नाउ दिस इज लीगली रॉन्ग. But if we talk about the negative euthanasia or the passive euthanasia, it means when the situation, so okay, it refers to a situation जहां पे extraordinary और कोई ऐसा कोई मेजर लिया नहीं है जो पेशेंट का लाइफ को सस्टेन करने के लिए. ओके, इसको बोलते हैं नेगेटिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया. आपको पता है कि आपका पेशेंट को अगर आप वेंटिलेटर से सपोर्ट करो तो थोड़ा बहुत उनका बचने का चांसेस है, बट हमने वेंटिलेटर पे सपोर्ट पेशेंट को दिया नहीं है या आपने विथड्रॉ कर दिया, so that is the negative euthanasia. And the voluntary euthanasia, it means this is the situation in which the dying individual, जो already the dying patient है और the dying individual है, वो खुद wish कर रहे हैं, वो खुद decide कर रहे हैं भाई मुझे euthanasia दे दो, I don't want to live anymore because I am suffering a lot, इसको बोलते हैं voluntary euthanasia. उसके बाद आता है abortion. Abortion also it falls under ethical dilemma in nursing, which includes that the expulsion or the removal of a product of gestation before 20 weeks of gestation. उसके बाद आता है right to refuse the treatment. अगर as a nurse और as a doctor अगर हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, इवन अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस है ट्रीटमेंट करना बट फिर भी रिफ्यूज कर रहे हैं, so that is the right to refuse treatment. Then like patient अपने treatment, doctor has given the treatment to the patient but patient is refusing कि नहीं मुझे treatment लेना नहीं है, I don't want to take the treatment, that is right to refuse. तो आप क्या करोगे, patient खुद राजी नहीं है मेडिसिन लेने के लिए, so that also falls under ethical dilemma, what I am supposed to do. Because हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में ये बोलते हैं we should ask the patient, even एक वाइटल साइन लेने के टाइम में, बैक्टीरिया लेने के टाइम में, yes shall I do it, हम लोग पूछते हैं पेशेंट को यहाँ पे हम लोग क्या करें, what I am supposed to do in this condition. उसके बाद आता है refusal to treat. So ये arise कब होता है, when the nurse encounter होता है in a situation जो उनका जो
मोरल बिलीव है ना, उसमें कंफ्लिक्ट हो जाता है। ये सपोज इन केस ऑफ एबॉर्शन, पेशेंट अबॉर्ट करना चाहते हैं, पेशेंट वांट टू डू द मदर वांट्स टू अंडरगो एबॉर्शन, बट ये ऑलरेडी 28 वीक से ऊपर हो गया, आइडियली एबॉर्शन में नहीं जा सकते, बट पेशेंट को जाना है एबॉर्शन में। देन आता है ट्रूथ टेलिंग, सही बोलना, इट इन्वॉल्व्स द इशू, ये ऐसा कुछ इशू हो जाता है, मुझे मैं बोलूं या ना बोलूं, whether I should tell or whether I should not tell, to tell or not to tell. And the last one is do not resuscitate, उसको हम लोग DNR ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, द फिजिशियन जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद द इल और द इंजर्ड और द डिजीज पेशेंट फैमिली, पेशेंट का फैमिली के साथ बात करके विल राइट द DNR ऑर्डर, ठीक है, इन द मेडिकल रिकॉर्ड में लिखते हैं, ठीक है, डू नॉट रिससिटेट। सो द फिजिशियन ऐसा लिखते हैं कि द फिजिशियन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसीजर एंड द नर्स हैज टू फॉलो इट। प्रोसीजर के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रिससिटेट नहीं करेंगे। कभी फैमिली बोलते, इवन मोस्टली सीन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, सीएच कॉस्ट बहुत हाई हो गया, पेशेंट का बचने का कोई भी चांस ही नहीं, ऑलरेडी ब्रेन डेड है, तो ये करते हैं चलो रिससिटेट मत करो पेशेंट को, ओके, तो डॉक्टर यूज्ड टू राइट इट, ओके। सो दीस आर द एथिकल डिलेमा इन नर्सिंग। Coming to the next one, which is very very important, definition of disease prevention, or even we can say the levels of prevention, okay. So these are the activities, okay, which is designed to protect the patient, patient को protect करना है, और the members, they are members of the public from actual or the potential health threat and their harmful consequences, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं प्रिवेंशन ये ऐसा एक्शन है, क्या एम करते हैं, उसके एम है इराडिकेट करना, एलिमिनेट करना, और डिजीज और डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है ना उनको मिनिमाइज करना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं डिजीज प्रिवेंशन को, कितना लेवल में, और कैसे कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देयर आर मेनली 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। वन इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, देन द प्राइमरी प्रिवेंशन, द सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड द टर्शियरी प्रिवेंशन। सो क्या है ये चीज, ओके, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। So in the screen, like no, the slide it shows or it gives a very very clear idea about the levels of prevention. So see the smiling face here, it is there, the prevent of development of risk factors, मतलब मेरा बॉडी में है ना, मैंने रिस्क फैक्टर डेवलप होने के लिए मैंने चांस ही नहीं दिया है, शुरुआत से मैंने ऐसा अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है ना, तो कभी हुआ ही नहीं है, कभी मैंने चांस ही नहीं दिए। सो दैट इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है, since I did not give any chance to develop the disease in my body, automatically I will not suffer from any disease, मेरा बॉडी में कोई डिजीज रहेगा ही नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में we are managing the risk factors, okay, so in the primary prevention we are managing the risk factors, so prevention of the disease, okay। so primary prevention क्या क्या कैसे हो सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। So primary prevention or we can prevent the disease through the health education। हम लोग health education किसी को दे सकते, भाई ये चीज करो, ये नहीं करो, बोल सकते हैं हम लोग। Then we can even give attention to the personality development, we can do the genetic counseling, we can provide the adequate housing and recreation, we can provide immunization, personal hygiene के ऊपर stress देना है, environmental sanitation, then protection against the occupational disease. This all the things falls under the primary prevention. That means we are managing the risk factors, we are preventing the disease. So the primordial prevention and the primary prevention अगर हम लोग properly कर पाए ये दोनों, automatically we will not suffer from any disease। अभी यहाँ पे जो blue color का जो दिया हुआ है, the first arrow mark, so that is the onset of disease। अगर ये दोनों को, द प्राइमोडियल प्रिवेंशन और द प्राइमरी प्रिवेंशन, ये दोनों में अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहा है ना, वहां से डिजीज ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो डिजीज जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिस्क फैक्टर्स जब बॉडी में स्ट्रेस देते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। इनिशियली क्या होता है, ये सिम्टम शुरुआत में बॉडी को इतना सिम्टम नहीं देते, बट धीरे धीरे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी में फैलना चालू हो जाता है, देन इट स्टार्ट शोइंग द साइन एंड सिम्टम। तो उसमें क्या होता है, इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलते मेरा बॉडी में क्या है क्या नहीं है,
बट धीरे धीरे सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देते एंड द पेशेंट वो फील करना शुरू होता है उसका बॉडी में, फीवर से चालू हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेरा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेरे को क्या करना है, वंस एसिम्टोमेटिक फेज से तो सिम्टम स्टार्ट हो गया, सो सिम्टम जब स्टार्ट हो गया मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डायग्नोस करना पड़ेगा। आई नीड टू डायग्नोस एज अर्ली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी मुझे डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस के साथ साथ मुझे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है। तो जितना जल्दी मैं डायग्नोसिस करूंगी, जितना जल्दी मैं ट्रीटमेंट करूंगी, मेरा क्या होगा, द ड्यूरेशन जो इलनेस है ना, जो 2 दिन में जो मतलब जो ट्रीटमेंट नहीं देने से जो 5 दिन तक एक्सटेंड होगा, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट विथ प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट देंगे, जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे, उतना कम मेरा डिसेबिलिटी होने का चांसेस है। ये गया आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। एनीवे, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब यू हैव सफर्ड फ्रॉम द डिजीज, ठीक है, ठीक है, you are having this, you have shown the sign and symptom, you have suffered from the disease, but you have started taking the treatment. आपका डायग्नोसिस हो गया, आपका क्लिनिकल कोर्स हो गया, उसके बाद आता है आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। सो टर्शियरी प्रिवेंशन मतलब है आई नीड टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन एंड द डिसेबिलिटी। सो जो भी मेरा हुआ है, जो भी डायग्नोसिस मेरा हो गया, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। हम लोग यही बोलते हैं, कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, कम से कम डिसेबिलिटी हो। सो आई नीड टू रिस्टोर एंड रिहेबिलिटेशन, रेस्टोरेशन करना है, रिहेबिलिटेशन करना है। देन provision of hospital community facilities. We need to educate the public and the industry about the rehabilitation measures. Selectively हम लोग को placement करना पड़ेगा if they suffered from the major disability, and also the therapy in the hospital. So this is about the levels of prevention. So primordial prevention and the primary prevention, ये दोनों में कोई भी disease नहीं रहता है, absence of the disease. The secondary prevention क्या है, जब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ है तब से लेके शुरू करके द साइन एंड सिम्टम्स तक, द ट्रीटमेंट तक, एंड द टर्शियरी प्रिवेंशन का मतलब है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। नाउ here little bit I have shown you about the primary and the primary prevention, how we can achieve. So primary prevention, it can be achieved by health promotion and the specific protection. So health promotion में क्या क्या है, हेल्थ एजुकेशन है, द एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, द न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, हम लोग का इम्यूनाइजेशन है, सेरोप्रोफाइलेक्सिस है, केमोप्रोफाइलेक्सिस है, देन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स जैसा विटामिन ए देना है, विटामिन डी देना है, then safety of drugs and foods, and also the reduction of the environmental hazards, as example air pollution. Now types of rehabilitation which falls under the tertiary prevention. तो rehabilitation अपना 4 टाइप का होता है। क्या क्या है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, देन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, एंड एज वेल एज द साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। ओके, सो मेडिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन है रेस्टोरेशन ऑफ द बॉडीली फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसको रेस्टोर करना। कमिंग टू द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न द लाइवलीहुड, मतलब मुझे कुछ करना है, ओके, अपना जिंदगी को गुजरने के लिए कुछ करना है। सो उसका जो कैपेसिटी है ना, वो रिस्टोर करना है। सपोज किसी को एम्पुटेशन हो गया, पाव काट गया, तो एटलीस्ट वो हाथ से तो कुछ कर सकते हैं ना अपने अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। Coming to the social rehabilitation, this is restoration of the family and the social relationship, family relationship and as well as the social relationship. And last one is the psychological rehabilitation. Psychological, coming to the psychological rehabilitation. Psychological rehabilitation, it is the restoration of the personal जो relationship है, okay, personal relationship with the people, and as well as to maintain our mentally healthy condition, the emotional, the mental and emotional well-being को, इसको बोलते हैं psychological rehabilitation related to our mind. Okay, coming to the next one, like how easily we can remember about the primary, secondary and tertiary prevention. Primary prevention,
प्राइमरी, दिस इज द प्रिवेंशन, ओके, जहां पे कोई भी बीमारी अपना बॉडी में नहीं है। कमिंग टू द सेकेंडरी, एस मीन्स स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसको बोलते स्क्रीनिंग, हम लोग याद रख सकते हैं बहुत इजीली। एंड टर्शियरी, टी मीन्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हिच विल हेल्प अस to disability limitation and as well as to provide the rehabilitation. So primary, secondary and tertiary, that is prevention, screening and treatment. Next, jump into the hospital admission and discharge procedure. So hospital admission, okay. So admission, ठीक है, admission it means when we are allowing a patient, हम लोग जो patient को allow करते हैं ना hospital में रहने के लिए, patient allowing the patient to stay in the hospital, क्यों रहते हैं? It can be for the observation, it can be for the investigation, it can be for the treatment, okay. So it can be, जो the hospital admission है ना, it can be of for the two purpose, और उसके indication दो हो सकते हैं, either it can be the emergency or it can be the routine. इमरजेंसी में क्या आता है? इमरजेंसी में ऐसा आता है जब पेशेंट आते हैं क्या लेके, एक्यूट कंडीशंस लेके। सो एक्यूट कंडीशंस में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकते हैं, देन उनका एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, मतलब ऐसा केस है जो रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, अभी उनको ट्रीटमेंट का जरूरत है। और इट कैन बी इवन द रूटीन ऑल्सो। सो रूटीन में क्या क्या आते हैं? द पेशेंट्स which have admitted in the hospital for the investigation के वजह से हो सकता है, then planned treatment and surgery है, पेशेंट को ऑलरेडी प्लान्ड है ये चीज है, then patients who require the long term care, बहुत लंबा टाइम तक, जैसे कैंसर पेशेंट केमोथेरेपी के लिए उनको आना ही है, रेडिएशन के लिए उनको आना ही है, ओके, इज रूटीन। सो हॉस्पिटल एडमिशन it can be emergency and it can be the routine. Now how, what is the admission procedure? ठीक है, एडमिशन कैसे हॉस्पिटल में होता है? सी दो द प्रोसीजर नो इट मे वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बट जो इन जनरल जो है व्हिच इज वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, उसमें क्या है, पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी आइदर इट कैन बी इमरजेंसी और इट कैन बी रूटीन। दोनों केस में पेशेंट क्या होता है, पहले वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी है तो पेशेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो इनटू द इमरजेंसी। इमरजेंसी जो वार्ड है ना, इमरजेंसी ओपीडी है, वहां पे पेशेंट जाते हैं, वहां से पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी और डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज कंडीशन हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं। बट इफ इट इज रूटीन है तो पेशेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज्ड टू गो टू द रजिस्ट्रेशन में जाके उनको आईपी एड्रेस वगैरह, आईपी नंबर वगैरह मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद वो एंसिलरी सर्विस में क्या क्या करते हैं, अगर कोई भी लाइक पेशेंट फार्मेसी, देन लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, एमआरआई स्कैन, जो भी उनको करना है, सब कुछ करने के बाद पेशेंट जाके जो उनका वार्ड है जहां पे उनको रखना है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, उनको पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, ओके। सो रजिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है? रजिस्ट्रेशन की बात किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी में अराइव होते हैं, उसके बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसका नाम, आता पता, एज, उनका डिजीज क्या है, उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, कब से हुआ है, सब कुछ उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले उनका कभी सर्जरी, सब ऑल द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पेशेंट का मिलते हैं। उसके बाद इफ इट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है बिलिंग का हिसाब से उनको बताया जाएगा, ठीक है, कि ये टैरिफ है, मतलब ये वार्ड का ये टैरिफ है, सो लेट देम चूज, वो लोग करते हैं। बट अगर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो रजिस्ट्रेशन के लिए सम वेरी मिनिमम अमाउंट उन लोग लेता है। और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इफ द पेशेंट हैज टू अंडरगो द इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए नॉमिनल अमाउंट पेशेंट को पेमेंट करना पड़ता है। सो वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो रजिस्ट्रेशन में ही दिया जाता है। देन पेशेंट का पेपर वगैरह एवरीथिंग आजकल बिकेम कंप्यूटराइज, सब कुछ का प्रिंट आ जाते हैं। देन पेशेंट को आर्म बैंड जो है, आइडेंटिफिकेशन बैंड जो है पेशेंट को लगाया जाता है। देन वी हैव टू असिस्ट द पेशेंट को रूम तक, बेड तक हम लोग असिस्ट करके पेशेंट को लेके जाते हैं। देन नर्सिस स्टेशन में हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिस स्टेशन में लेके जाके नर्सिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके देन वी टेक द पेशेंट टू द लिख लो प्रिस्क्राइब बेड, जहाँ पे उनके लिए बेड अलॉट किया है वहां पे हम लोग लेके जाते हैं। सो दिस इज आइडियली द एडमिशन प्रोसेस, हाउ इट इज। बट व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर?
जब एडमिशन होता है, दो इट इज डन इन द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बट उसमें भी नर्स का कुछ कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेशेंट आते हैं और पेशेंट का रिलेटिव आता है ना, उनको हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के बारे में ओरिएंट करना है। ठीक है, क्या चीज क्या करना है, क्या नहीं करना है, विजिटिंग आवर क्या है, कितना अटेंडेंट वहां पर रह सकता है, अगर कुछ कंसेंट फॉर्म फिलअप करने, सो ऑल दोस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय द नर्स इनिशियली, जब पेशेंट एडमिट होता है तभी। Then deal with the patient carefully who is suffering from communicable disease or illness. Isolate if necessary. अगर पेशेंट कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है तो पेशेंट को नेसेसरीली आइसोलेट करना है। The patient's valuable and clothes, it should be handed over to the relatives with proper recording, because most of the hospital nowadays जब पेशेंट एडमिट होता है उनका हॉस्पिटल का ड्रेस दे देते हैं। सो जो भी वैल्यूएबल्स है, अगर कुछ ज्वेलरी है या पैसा या वट एवर वैल्यूएबल्स आर देयर क्लॉथ्स है, वो पेशेंट का रिलेटिव या नियर एंड डियर वंस जो पेशेंट का अटेंडेंट आया है उनको हैंड ओवर करना है। ये है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन प्रोसीजर के टाइम में नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट अस सी अबाउट द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, सो डिस्चार्ज का मतलब है, इट मींस द डिसमिसल ऑफ द पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट जब वर्ड से हॉस्पिटल से जब छुट्टी होके घर जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज? सो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज जो है ना, हम लोगों को आइडियली 5 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज है। 5 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में फर्स्ट जो है दैट इज द प्लान्ड डिस्चार्ज। सो प्लान्ड डिस्चार्ज है, पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव हुआ है और पेशेंट को हॉस्पिटल में और रहने का जरूरत नहीं है। सो पेशेंट कंप्लीट द इनिशियल और एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड नाउ ही और शी नीड नॉट टू बी द अंडर सुपरविजन ऑफ द, डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर में रहने का जरूरत नहीं है। दैट इज प्लान्ड। हम लोग प्लान करते हैं, हाँ पेशेंट का तबीयत सही है, हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद आता है डामा और लामा। ओके, सो दैट इज द डिस्चार्ज और लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। ओके, डॉक्टर का मेडिकल एडवाइस की वजह से नहीं ये चीज आपको करना है, उस हिसाब से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। देन ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर टू अदर यूनिट और द हॉस्पिटल, मतलब सेम यूनिट में दूसरी वार्ड में ट्रांसफर हुआ है, नहीं तो पेशेंट मतलब अदर यूनिट, सेम हॉस्पिटल का अदर यूनिट में ट्रांसफर हुआ है, नहीं तो बाकी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। देन आता है एब्सकॉन। एब्सकॉन मतलब किसी को बिना बोल के हॉस्पिटल से गायब हो जाना। एंड द लास्ट वन इज रेफरल। ओके, रेफरल में क्या है, पेशेंट रेफर हो गया और फर्दर मैनेजमेंट। ओके, so these are the mainly 5 types of discharge, and even one more thing it is there, even the death also, patient जब डेथ हो जाता है तो भी पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज ही करते हैं। ओके, नाउ पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तब हम लोग को क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या चीज पेशेंट के साथ भेजना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट का जो चार्ट है, पेशेंट का जो फाइल्स है वो, देन अनयूज्ड मेडिसिन, जो पेशेंट के यूज नहीं हुआ है वो सब मेडिसिन। ओके, ड्रग रिटर्न स्लिप, अगर कुछ रिटर्न करना है वो रिटर्न का स्लिप, एंड एज वेल एज द डिस्चार्ज स्लिप। सो ये सब चीज पेशेंट के साथ हम लोगों को रिटर्न कर देना है। ओके, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। सो हियर सम स्टेप्स आर देयर। एंश्योर द डिस्चार्ज इज ऑर्डर्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर और साइन लेटर फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, इन केस इफ इट इज अ प्लान डिस्चार्ज तो मेडिकल ऑफिसर का साइन रहेगा, और अगर ये लामा और डामा है तो पेशेंट का साइन रहेगा उसमें और पेशेंट का रिलेटिव का रहेगा। Then patients and relatives are informed about the discharge. Discharge होने से पहले पेशेंट को एंड एज वेल एज पेशेंट का रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दे नीड टू बी एजुकेटेड, हेल्थ एजुकेशन एंड एज वेल एज द एजुकेशन रिगार्डिंग द कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट उनको कंटिन्यू करना है, कब फॉलो अप के लिए आना है, ये सब चीज उनको बता के देना है, एजुकेशन देना है उनको। Now the nursing responsibility in the discharge, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन करना है डिस्चार्ज के लिए। कैसे प्रिपेयर करना है, शुरुआत से बिगिनिंग। ठीक है, उनका ड्रेस चेंज करवाना, हेल्थ एजुकेशन देना उनको, उनका जो बिलोंगिंग्स है सब उनको वापस करना, समझाना। देन प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप, अगर कुछ रिहेबिलिटेशन का जरूरत है पेशेंट को और फॉलो अप का जरूरत है वो बताना, प्लान करना कब आना है।
Then teach nursing procedure to be continued at home. Get it practice done. मतलब अगर घर पे कोई भी ऐसा नर्सिंग प्रोसीजर उनको करना है, एज एग्जांपल ड्रेसिंग करना है, उनको यूरो बैग है उसको खाली करना है, ठीक है, पेशेंट को सक्शन करना है, ये सब चीज अगर घर पे करना है तो उनको सिखाना है। एट द सेम टाइम सामने एक बार प्रैक्टिस भी करवाना है, ऐसा नहीं है सिखा के आप छोड़ दिया, प्रैक्टिस भी करवा देना है। एंड अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, पेशेंट जब घर जाएगा, खुद का गाड़ी है तो एटलीस्ट गाड़ी तक पहुंचा देना है थ्रू द नर्सिंग असिस्टेंट। पेशेंट को व्हील चेयर या स्ट्रेचर जो भी चाहिए, थ्रू दैट पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है। सो दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। नाउ we'll see about the nursing process. So nursing process, what is that? बहुत सुनते हैं हम लोग एज ए नर्स, नर्सिंग प्रोसेस लिखने हैं, जब केयर देते हैं नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, नर्सिंग केयर प्लान करना है। सो व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? सो इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टू डिटरमाइन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। ओके, सो डेटा कलेक्शन करना है किसके बारे में? एक्चुअल प्रॉब्लम और द पोटेंशियल प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट इज पोटेंशियल प्रॉब्लम? एक्चुअल प्रॉब्लम का मतलब है रियली जो पेशेंट को अभी जो प्रॉब्लम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम। फीवर है पेशेंट को, एक्चुअल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो चीज आगे जाके पेशेंट को प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, राइट नाउ इट इज ऑफ नो प्रॉब्लम, बट आगे जाके हो सकता है। पेशेंट इज नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, पेशेंट न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहा है, अभी कुछ नहीं होगा, बट आगे जाके पेशेंट को malnourishment होने का चांसेस आता है, malnutrition होने का चांसेस है। दैट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम। सो नर्सिंग प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टू डिटरमाइन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। नाउ अभी डेटा कितना टाइप का होता है? डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डेटा? सो ऑब्जेक्टिव डेटा मीन्स इट इज द overt, measurable and detected by the use of senses. This objective data, it is also known as the sign of disease. ठीक है, the sign of a disease इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा, जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा फीवर, हम लोग टेम्परेचर चेक किए, चेक करके देखे 101, so this is the sign, this is the objective data. But now if we talk about the subjective data, subjective data का मतलब है this is which is covert, the feelings, the sensation and the perception, and this is also known as the symptoms of a disease, जो पेशेंट खुद बोलता है मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, that is the symptom, बुखार जैसा लग रहा है मुझे, वो खुद सेंस किया है, उसको फील किया है, उसने आपको बोला है। बट अगर ऑब्जेक्टिव डेटा का बात हम लोग करें, हाँ उसने जब मुझे बोला है मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, मैंने टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक किया है, चेक करके मैंने देखा यस ही इज हैविंग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव डेटा। पेशेंट बोला है मेरे को पेन हो रहा है, बट आपने पेन स्केल से उसको मेजर किया है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव डेटा। So two types of data are there. Objective data, this is also known as the signs of disease. Subjective data, what the patient complains, so their feelings, their sensation, their perception, this is the symptoms of the disease. Now coming to the sources of data. Data हम लोग को कहाँ से मिलता है? Okay, so data हम लोग को मिलता है फ्रॉम द टू सोर्सेस, एक हो सकते हैं प्राइमरी सोर्स, एक हो सकता है अपना सेकेंडरी सोर्स। सो प्राइमरी सोर्स कौन है? क्लाइंट है, जो खुद बोलता है ये मेरे को ये हुआ है, आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, देन बाय द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो हम लोग को डेटा मिलते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा है जो खुद पेशेंट बोलता है, एंड सेकेंडरी डेटा है जो फैमिली मेंबर, द सिग्निफिकेंट अदर्स, द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, दिस ऑल दोस थिंग्स दैट गिव अस। Coming to the methods of data collection. So this data collection methods, this is a four. One is observing,
interview, it can be observing, it can be interviewing, it can be the physical assessment, observation of the client behavior, and as well as diagnostic and lab data. डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम लोग खुद देख के कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन, उसका मूवमेंट, ओके, ये सब देख के हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं, दिस आर द थिंग्स पेशेंट मे हैव सफरिंग फ्रॉम। इंटरव्यू, हम लोग पेशेंट को पूछ सकते हैं, भाई तुमको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पेशेंट खुद बताएगा हम लोग को। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल असेसमेंट, हेड टू टू एग्जामिनेशन करके हम लोग पता कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट्स बिहेवियर, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। सोचो पेशेंट को बहुत स्टमक पेन हो रहा है, वो पेट पकड़ के बैठा है, बिहेव कर रहे हैं ऐसा, ओके। देन डायग्नोस्टिक एंड लैब डाटा, जो इन्वेस्टिगेशन है उससे भी हम लोग डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस है द एक्चुअल और द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट रिजॉल्व्स फ्रॉम द डिजीज प्रोसेस। और ये भी हो सकता है द प्रॉब्लम्स, इट कैन बी द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव द कंसर्न फॉर द पेशेंट। पेशेंट का कंसर्न है, पेशेंट का हेल्थ के लिए डेंजर है, जिसको मैनेजमेंट रिक्वायर है, और द हेल्थ केयर जो टीम है ना, उसका मेंबर को इसके बारे में कंसर्न है। ये होता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस? वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन उसका रीजन क्या हो सकता है, इसका इटियोलॉजी क्या हो सकते हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम लोग डायग्नोसिस जो है उसको कंसाइजली या प्रिसाइजली हम लोग बनाते हैं। सो ये जो डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये तीन तरह का नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। एक होता है एक्चुअल डायग्नोसिस, एक होता है पोटेंशियल डायग्नोसिस, एक होता है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। जो ये तीन नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, द एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? व्हिच इज इंडिकेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अभी जो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है ना, उसको इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। देन पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस, they indicate the problem that does not yet exist। मतलब अभी वो हुआ नहीं है बट हो सकता है। एज ए एग्जाम्पल, कोई पेशेंट को अगर गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है, एज एग्जाम्पल गॉल स्टोन का प्रॉब्लम है, पेशेंट को पेन हो रहा है, सो दिस इज द एक्चुअल डायग्नोसिस। पेन हो रहा है पेशेंट को राइट नाउ बिकॉज ऑफ द गॉल स्टोन, बट इसको अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, ठीक है, ट्रीटमेंट पोटेंशियल क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट को बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकता है। सो इंडिकेट द प्रॉब्लम दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, मतलब अभी तक हुआ नहीं है बट हो सकता है। एंड द पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इंडिकेट ए सिचुएशन वेयर प्रॉब्लम कुड अराइज अनलेस प्रिवेंटिव एक्शन नॉट टेकन। अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किया है तो हो सकता है। एज एग्जाम्पल, एक्सेसिव टेकिंग एक्सेसिव फैटी फूड, एक्सेसिव फैटी फूड हम लोग ले रहे हैं, अगर हम लोग इसको प्रिवेंट ना करें, इसको हम लोग स्टॉप ना करें, तो क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकता है। We can have the coronary artery disease. So this is the possible nursing diagnosis. तो नर्सिंग डायग्नोसिस तीन तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, एक होता है पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस, एक हो सकता है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। So actual means which indicates the existing problem, potential diagnosis which indicate the problem that does not yet exist, and possible nursing diagnosis which indicate a situation where problem could arise unless preventive action not taken. Now let us jump into the planning. प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग मतलब गोल को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ ए गोल।
एंड सिर्फ गोल डेवलप करने से ही नहीं होगा, उसके साथ we need to plan a care design which is designed to assist the patient. ठीक है, सिर्फ गोल को डेवलप करने से नहीं होगा, गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को केयर भी प्लान करना पड़ेगा। एंड ये जो प्लानिंग है ना, इट शुड बी वेरी मच स्मार्ट। ये स्मार्ट क्या है, एस का मतलब है स्पेसिफिक। So you should all remember the planning should be specific। आप क्या करोगे, बी स्पेसिफिक, हाँ मुझे यह करना है। उसके बाद एम, इट शुड बी मेजरेबल। आप जो कर रही हो ना, वो मेजर करना चाहिए। मतलब वी शुड बी एबल टू नो बाय सीइंग कि नहीं ये इतना इंप्रूव हुआ है, पेन कम हुआ है, टेम्परेचर चेक किए फीवर कम हुआ है, विच इज मेजरेबल। देन विच इज अटेनेबल, हम लोग अटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने ऐसा कुछ प्लानिंग कर लिया जो इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो व्हाट एवर यू आर प्लानिंग, इट शुड डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी। मेरा कैपेबिलिटी के अंदर, मेरा कैपेसिटी के अंदर मुझे ये प्लान करना है, विच आई कैन अटेन इट, मैं ये अचीव कर सकूं, मैं कर सकूं खुद। इट शुड बी रियलिस्टिक एंड ऑल्सो इट शुड बी टाइम बाउंड। टाइम का हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करना है, देखना पड़ेगा हाउ मच टाइम इट इज नीडेड, कितना टाइम लेगा, टाइम का हिसाब से करना पड़ेगा। सो प्लानिंग इट शुड बी स्मार्ट। अभी जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, उसमें कुछ कुछ स्टेप्स है। क्या स्टेप है प्लानिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, वो नर्सिंग डायग्नोसिस का हिसाब से आपको प्रायोरिटी फाइंड आउट करना है, प्रायोरिटी हिसाब करना है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि योर पेशेंट is having fever, at the same time your patient is having the nutritional imbalance। आप क्या करोगे पहले? तो आप जो प्लान करोगे ना, it should be depending upon the priority। yes, my patient is having nutritional imbalance, but at the same time हम खाना थोड़ी देर बाद भी खिला सकते, बट फीवर मुझे सबसे पहले रिड्यूस करना है, so that is the priority। So assign the priority to the nursing diagnosis। जब भी आप प्लान कर रही हो, it should be depending upon the priority। then आपको गोल जो है ना, उसको स्पेसिफाई करना है in the realistic and the measurable term। जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो गोल है और द नर्सिंग इंटरवेंशन है, you need to find out the appropriate one which is achievable, which is attainable। you need to develop and written the nursing care plan which include the nursing diagnosis, goals, nursing intervention, expected outcome, and if it is necessary or if it is possible, हम लोग पेशेंट का फैमिली, उनका जो सिग्निफिकेंट, उनका जो रिलेटिव नियर एंड डियर वंस, देन अदर नर्सिंग टीम मेंबर्स, हेल्थ मेंबर्स जो है, इनको भी इन्वॉल्व करना है जब भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये प्लानिंग के ऊपर मेरा पेशेंट का पूरा प्रोग्रेस और पूरा प्रोग्नोसिस डिपेंड करते हैं। सो प्लानिंग, इट शुड बी स्पेसिफिक, it should be measurable, it should be attainable, it should be realistic, and it should be time bound। Now coming to the implementation। क्या है implementation? So implementation, it is the execution of the nursing care plan। implementation का मतलब है जो भी प्लानिंग मैंने किया है, so according to the plan we have done it। So this is the actualization of the plan of care through the nursing intervention or supervision of the others to do the same। हम लोग खुद किया है या हम लोग सुपरवाइज किया है, मतलब जो भी प्लानिंग था, प्लानिंग का हिसाब से we have done it। नहीं तो हम लोग सुपरवाइज किए, somebody has done, we have supervised, मतलब at the end of the day मेरा काम हुआ है, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन भी दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, एक होता है डिपेंडेंट इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है जब नर्स है ना खुद
परफॉर्म कर सकते विदाउट द डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देना, पेशेंट को फीवर आया है, कोल्ड स्पंजिंग दिया है मैंने, इसको मुझे किसी से है ना डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा पेशेंट को फीवर आया, मुझे स्पंजिंग करना ही है। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन क्या है? which are prescribed by the physicians and carried out by a nurse। जब डॉक्टर मेडिसिन लिख के दिया है, ठीक है, आपने पेशेंट को डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन यू हैव गिवन, योर डॉक्टर सेज प्रेस्क्राइब, दैट इज द डिपेंडेंट इंटरवेंशन। सो इंटरवेंशन दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, एक होता है डिपेंडेंट इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन मीन्स which are those that nurse can perform without the direction from others. In case of dependent intervention, which are prescribed by the physician and carried out by the nurse. Okay, but जब भी हम लोग implementation का planning किया है and we are doing the implementation, we need to reduce or we need to eliminate the causative factors affecting the health. health का जो भी cause है, बीमार होने का जो भी factors है, उसको हम लोग either eliminate करना है, नहीं तो हम लोगों को reduce करना है। और उसके साथ साथ हम लोग का जो जजमेंट है, जो हम लोग का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ये सबको भी यूज करना है। ओके, एंड ये जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, ये सब पेशेंट फोकस्ड है। ठीक है, ये पेशेंट फोकस्ड है एंड दीज आर गोल डायरेक्टेड। मुझे ये करना है, पेशेंट का फीवर कम करना है, इसके लिए मुझे कोल्ड स्पंजिंग देना है, गोल है मेरा, गोल डायरेक्टेड। सो द नर्सिंग इंटरवेंशंस, these are patient focused and as well as these are goal directed. Coming to the last one, that is the evaluation. So evaluation is to determine whether the client's goal has been met or not. Clients का जो goal है ना, वो meet हुआ है कि नहीं हुआ है। Okay, so in this नर्स क्या करता है? रीअसेस करता है। सो द नर्स रीअसेस द पेशेंट। जो डेटा गैदर उन्होंने किया था ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज, ये फिर से वो इवैल्यूएशन के टाइम में वही डेटा गैदर करता है। क्यों गैदर करते हैं? बिकॉज शी हैज डन द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन के बाद पेशेंट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुआ है न डिटेरियोरेट हुआ है। So that improvement and the deterioration, it will tell us the actual response of the nursing intervention. जो हम लोग एक्चुअली जो किया है ना, उसका रिस्पॉन्स मुझे ये इवैल्यूएशन ही देगा, ये डेटा ही देगा जो मुझे इवैल्यूएशन के टाइम में कलेक्ट करना है। इसका मतलब है, सपोज आपने टेम्परेचर चेक किया है डेटा कलेक्शन के टाइम में, जब आपको पता चले आपका पेशेंट को फीवर है, उस हिसाब से आपने नर्सिंग डायग्नोसिस भी बनाया है, उस हिसाब से आपने प्लानिंग भी किया है, उस हिसाब से आपने कोल्ड स्पंजिंग भी दिया है, मेडिसिन भी दिया है, आपने इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन भी किया है, डिपेंडेंट इंटरवेंशन भी किया है। करने के बाद व्हेन द इवैल्यूएशन फेज केम, व्हाट यू हैव डन, you have checked again the temperature. टेम्परेचर चेक करके अगर पता चला है कि टेम्परेचर रेड्यूस हुआ है, हाई टेम्परेचर क्या भी रेड्यूस हुआ है, तो ही तो आप बोल सकते हो ना कि द इम्प्लीमेंटेशन whatever I have done that was right or it has been worked out. अगर reduce नहीं हुआ है, सेम ही रहा है, तो कुछ काम नहीं हुआ है ना। So the evaluation, in the evaluation phase, the nurse reassesses the patient to gather the data which include the patient's actual response to the nursing intervention. तब nurse क्या करता है? The nurse compares the actual outcome with the desired outcome. Okay, actual outcome with the desired outcome and makes the critical judgment about whether the patient-centered goal or the desired patient outcome it was achieved or not. मेरा outcome criteria क्या है, वो meet हुआ है कि नहीं हुआ है, that the nurse used to determine. Okay. So this evaluation, no, it is the final component of the nursing process. This is the final component. So ये जो final component है, ये determine करते towards the patient's response to the nursing intervention
and also the goals has been achieved or not. So जब हम लोग इवेलुएट करते हैं, हम लोगों को कुछ कुछ आंसर खुद को फॉलो करना है. क्या आंसर फॉलो करना है? मेरा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, वो एक्यूरेट था कि नहीं था, whether the nursing diagnosis was accurate or not. So did the patient reach the expected outcome? Expected outcome तक patient पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? Then did the patient attain the expected outcome within the critical time period? जो टाइम बाउंड था, मेरा प्लानिंग में मैंने बोला था स्मार्ट टाइम बाउंड. सो टाइम के अंदर, टाइम की पीरियड के अंदर एक्सपेक्टेड जो मेरा आउटकम था वो अटेन हुआ है कि नहीं हुआ है. जो नर्सिंग डायग्नोसिस था वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है. नर्सिंग नीड जो था, उस नीड मीट हुआ है कि नहीं हुआ है. जो नर्सिंग इंटरवेंशन था वो मुझे कंटिन्यू करना है ना मुझे डिसकंटिन्यू करना है. देन कुछ न्यू प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि नहीं आफ्टर प्रोवाइडिंग द नर्सिंग केयर. कुछ न्यू प्रॉब्लम वेदर इट हैज बीन अराइज्ड और नॉट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी रीअसाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड वेदर वी हैड मेड द गोल्स एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम और नॉट. So the objective data Hello, ma'am. Is it done? Hello.